So 51 question number. Which one of the following is included in the state list under 7th schedule of Indian Constitution? A है education, electricity, railway, police and forest. आंसर होगा इसका सी, रेलवे पुलिस. एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, while railway police is the subject of state list. Question number 52. In which list of the Indian Constitution the Panchayati Raj subject is included? इसका आंसर होगा state list. Entry 5 of the state list in the 7th schedule provide for local government, that is Panchayati Raj. Question number 53. Which of the following subject is in list third concurrent list of the 7th schedule of the Constitution? इसका होगा criminal procedure. A. Criminal procedure is the subject of concurrent list in the 7th schedule, while public order, prison, police are in the state list. Question number 54. Marriage, divorce and adoption are an entry in the 7th schedule of Constitution under the following. इसका होगा C. लिस्ट थर्ड में होगा, कंकरेंट लिस्ट में होगा. मैरिज, डाइवोर्स एंड अडॉप्शन. मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन आर द सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट 3 concurrent list as entry number 5 related to 7th schedule. Question number 55. The right of government to impose taxes and fees is provided in which list of constitution? So 6th schedule है, 7th schedule है, 9th schedule and 11th schedule. तो इसका आंसर है बी. बी क्या है? 7th schedule. Article 246 of the Indian Constitution distributes legislative power including taxation between the Parliament of India and the state legislature. Schedule 7 enumerates these subjects matter with the use of 3 lists, list 1, list 2 and list 3. Thus the right to impose taxes and fees by the union and state is provided in 7th schedule of the Constitution. 56th question. Which one of the following is the state list? स्टेट लिस्ट में कौन कौन से हैं ये? ठीक है, तो इसका होगा रेलवे पुलिस. अभी बात किया था हमने. रेलवे इज द सब्जेक्ट टू यूनियन लिस्ट बट रेलवे पुलिस इज सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट. कॉर्पोरेशन टैक्स एंड सेंसस आर अंडर यूनियन लिस्ट बट इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट. क्वेश्चन नंबर 57. लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ. लैंड रिफॉर्म किस में आता है? सी है स्टेट लिस्ट में. लैंड रिफॉर्म आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. लैंड रिफॉर्म स्टेट लिस्ट में आता है. लैंड रिफॉर्म एक्ट हैज़ बीन एडेड टू शेड्यूल 9 of the Constitution by First Amendment Act 1951 to provide constitutional protection to states on matter of reforms act. Question number 58. Which of the following case is related to जमींदारी system? तो सी है इसका आंसर. 1 2 3 4 चारों सही है. कमरेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल. ओके, तो इसका आप देख सकते हो कि ये चारों सही है. जमींदारी से रिलेटेड ये सारे जो केसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 59. विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स? तो इसका आंसर होगा 5th शेड्यूल. 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सेप्ट इन स्टेट्स ऑफ A means Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. The provision of administration of tribal areas in these states is provided in 6th schedule of the Constitution. Question number 60. Provision of 6th schedule of the Constitution does not apply to which of these? ये किस पे अप्लाई नहीं होता है? मणिपुर पे. The administration and control of tribal areas in the state of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram are provided in 6th schedule, but the state of Manipur is not covered under this schedule. Question number 61. The provision of 6th schedule of Indian Constitution applicable in which of the following states? इसका होगा त्रिपुरा 6th schedule का. ठीक है, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि जो 6th schedule किस में होता है? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर. ये देखो यहाँ पे असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. मणिपुर नहीं है, मिजोरम है. असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम. Question number 62. 6th schedule of the Constitution of India deals with the administration and tribal areas of which of the following state? मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. क्वेश्चन इसका ऑप्शन होगा बी. क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आर्टिकल 371A नागालैंड दे रहा है, 371B असम दे रहा है,
371C मेघालय एंड 371D आंध्र प्रदेश। तो इसका होगा आर्टिकल 371C जो है मेघालय जो है वो गलत है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर एंड मेघालय इज मणिपुर नॉट मेघालय। ओके, और तीनों सही है। आर्टिकल 371A नागालैंड, आर्टिकल 371B आसाम, आर्टिकल 371C मणिपुर, आर्टिकल 371D आंध्र प्रदेश। The provision of the 5th and 6th schedule in the Constitution of India are made to protect the interest of scheduled tribes. Okay, special provisions are laid down by the 5th and 6th schedule in the Constitution of India to protect the interest of scheduled tribes. Question number 65. The constitutional status has been given to panchayats under the article. Constitutional status किसमें दिया गया है? B. ऑप्शन बी है 243. 73rd Amendment 1992 added a new part 9th of the Constitution titled the Panchayats, covering provisions from Article 243 to 243O and a new 11th schedule covering 29 subjects for the functioning of the Panchayat. Question number 66. The 11th schedule of the Constitution is related to which of the following? पंचायती राज, बी है आंसर। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है, और 12th शेड्यूल है म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 67. द प्रोविजन दैट नो बिल imposing tax can be introduced in the legislative except on the recommendation of the president is covered in the Constitution of India under 67th का A है आर्टिकल 117. According to Article 117, special provision as to financial bills are made as a bill or amendment making provision for any of the matter regarding the imposition, abolition, remission, alteration and regulation of any tax shall not be introduced or move except the recommendation of the president. मतलब ये कह रहा है कि कोई भी फिनेंशियल बिल होगा उस पर कोई भी उसमें चेंजेस लाना है, रिमिशन करना है, अल्ट्रेशन करना है, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, उसको मूव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं मिल जाएगा. एंड अ बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि और ऐसा बिल राज्यसभा में नहीं पास किया जाएगा, वो डायरेक्टली सबसे पहले जाएगा लोकसभा में, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट नो रिकमेंडेशन शैल बी रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 68. स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर. फाइनेंशियल बिल के लिए स्पेशल प्रोविजन कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 117 में. Special provision regard to financial bills provided in Article 117. Its three clauses give various conditions for financial bill. Question number 69. Which of the following article of the Indian Constitution provide for all India services? अब all India services का किस में दिया गया है? वो दिया गया है आर्टिकल 312 में, ठीक है. आर्टिकल 312 of the Indian Constitution provide all India service if the Council of State means Rajya Sabha has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the member present and voting that is necessary or expedient in the national interest for creating creating of one or more all India service. मीन्स ऑल इंडिया सर्विस का जो भी क्रिएशन होगा वो राज्यसभा के थ्रू होगा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और आर्टिकल 312 के तहत होगा. आर्टिकल क्वेश्चन 70. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली मैच्ड? 70 का क्या है? पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 318, बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 332, अटॉर्नी जनरल इंडिया अटॉर्नी जनरल डी आर्टिकल 351. अब इसमें बताना कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है, तो इसका होगा बी आंसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, ठीक है. अब हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं. पार्ट 15 Article 324 to 329 is related to elections. According to Article 324, the Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other commissioners as President may from time to time fix. Its main function is superintendence, direction and control of election. The provision of a Supreme Court is in Article 124. जो प्रोविज़न ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 124 में है, यूपीएससी का 315 में है एंड अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 में है. वाइल आर्टिकल 351 इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. जो आर्टिकल 351 है
वो किस चीज़ से रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के विकास के लिए रिलेटेड है। यूपीएससी है 315 आर्टिकल में। अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल नंबर 76 में, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। और इलेक्शन का है आर्टिकल 324 में। सुप्रीम कोर्ट का किससे है? आर्टिकल 124। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका है आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये तो सही है। आर्टिकल 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो ये आ सकता है मैचिंग में। तो और डी है आर्टिकल 48। 48 ये रॉन्ग है, क्योंकि आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज गिवन इन आर्टिकल 50, while आर्टिकल 48 प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 72 है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ये भी आर्टिकल्स ही हैं, तो इसका कैसे हम करते हैं? इसका फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो फॉर्मेशन ऑफ जो विलेज पंचायत है वो है फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत था, कौन सा था? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है आर्टिकल 40 का। यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है आर्टिकल 48। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 50। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51 में है। क्वेश्चन नंबर 73, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें देखते हैं आर्टिकल 61 क्या है? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 61 से राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 67 भी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर। आर्टिकल 90 रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे जो संवैधानिक पदों पे हैं उनको रिमूवल के लिए आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन 74, मैच लिस्ट एंड लिस्ट सेकेंड। Article 5 contains the provision of citizenship. Article 124 is the establishment of Supreme Court. Article 245 is related to distribution of power between Union and States legislature. And Article 352 is related to proclamation of emergency. Okay. तो यहाँ पे क्या है? आर्टिकल 352 इमरजेंसी से रिलेटेड हो गया, और आर्टिकल 124 जो है वो किससे रिलेटेड हो गया? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो गया। आर्टिकल 245 रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, ये भी है मैच का है, इसका हम डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वलिटी, राइट। आर्टिकल 36 इज रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 74 इज रिलेटेड टू द काउंसिल of Ministers, and Article 368 provide procedure for the amendment of the Constitution. क्वेश्चन नंबर 76, ये भी मैचिंग ही है, तो इसका हम पढ़ते हैं। टू एडमिट न्यू स्टेट बाय लॉ, यह आर्टिकल 2 में आता है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन हुआ आर्टिकल 22 में। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट द बिल आर्टिकल 111 में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कई बार मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ये भी मैचिंग ही है, सारे इस समय मैचिंग ही आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका सीधे हम एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, and other ministers shall be appointed by the president on the advice of prime minister. Article 155 related to the appointment of governor, and Article 164 is related to the appointment of chief minister of state, and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister. Article 170 contains provision for composition of state legislative assemblies. 78 भी है मैचिंग का। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हो गया। आर्टिकल 324 इलेक्शन से रिलेटेड है। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। आर्टिकल 320 है फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन।
79. Article of the Indian Constitution provide right to vote and adult suffrage for electing representative of Lok Sabha and Vidhan Sabha. वो है आर्टिकल 326. Option A. Article 326 of the Indian Constitution provide election to the House of the People and to the Legislative Assemblies of State to be on the basis of adult suffrage. Question number 80. Match list and list second. Again we will read the options. ऑप्शंस क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया तो आर्टिकल 368 में होता है, फाइनेंस कमीशन को होता है आर्टिकल 280 में आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया आर्टिकल 360 में आता है, ऑल इंडिया सर्विस 312 में आता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम एक बार। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ऑल इंडिया सर्विस 312, 81। Okay, we will start in new video from here, from 81.